Hello students, welcome to my class, and today is start our science class. So today's lesson is chapter 4 where animals live, adaptation, page number 41, 41 and 42. Okay, please note down on your diary that today's science lesson is chapter 4 where animals live, adaptation, page number 40, 41, 42. So let's start, students. So in our previous class we just discussed about the aerial animals flight adaptation in birds. तो ये तक हुआ था. तो today's we gonna start the flight adaptations in insects. So please open your books and please match my video with your books. Okay. Bees have two pairs of wings. The honeybee's wings stroke incredibly fast. About 200 beats per second, thus making distinctive buzz. A honeybee can fly for up to 6 miles and as fast as 15 miles per hour. This helps it visit thousands of flowers while it is out collecting nectar. So bees के पास 2 पेयर विंग्स होते हैं. ठीक है. सो हनी बी स्ट्रोक इनक्रेडिबली फास्ट, तो वो बहुत ही फास्ट स्ट्रोक करती है विंग्स को. एंड 200 बीट पर सेकेंड. तो यहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है दैट 200 बीट पर सेकेंड. ओके. सो हनी बी स्ट्रोक 200 बीट पर सेकेंड and thus making a distinctive buzz for these. Okay. Honeybee can fly up to 6 miles as fast as 15 miles per hour. तो वो per hour 15 mile जा सकती है. Okay. This helps is visit thousands of flowers while it's out collecting nectar. तो वो जब नेक्टर कलेक्ट करने के लिए जाती है तो इतनी मतलब ज़्यादा दूर वो जा सकता है, इसीलिए एक दिन में थाउजेंड्स फ्लावर से वो नेक्टर कलेक्ट कर सकती हैं. ओके. नेक्स्ट इज बटरफ्लाइज आर इंसेक्ट. बटरफ्लाइज आर इंसेक्ट्स but large scaly wings set them apart. These wings allow them to fly from flower to flower to suck nectar. So butterflies insects है, तो उसके जो large scaly wings है and these wings allow them to fly from flower to flower to suck nectar. तो उसके wings भी उसको help करते हैं एक फूल से दूसरे फूल जाने के लिए एंड ऑल्सो नेक्टर कलेक्ट करने के लिए. ड्रैगन फ्लाइज हैव 2 pairs of wings. Their wings are very thin and sheer with small veins that crisscross to add strength. Dragonflies can beat their wings together or separately, which allows them to turn easily in the air, hover and fly backward. So dragonfly के पास कितने पेयर विंग्स होते हैं? They have pair of wings, 2 pair of wings. Okay, 2 pair of wings. Their wings are very thin. So how their wings? Their wings are very thin and sheer with small veins.
नेक्स्ट इज फ्लाइट एडाप्टेशंस इन बैट्स। तो बैट्स के पास क्या एडाप्टेशंस हैं, एडाप्टेशन फीचर्स? सो बैट्स आर द ओनली मैमल्स दैट आर केपेबल ऑफ कंटिन्यूड फ्लाइट। तो मैमल्स में बैट ही एकमात्र मैमल्स है जो मतलब फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है। दे हैव अ वैरायटी ऑफ स्केलेटल एडाप्टेशंस दैट अलाउ देम टू फ्लाई। तो उनके पास एक स्केलेटल एडाप्टेशन है जिसके थ्रू वो मतलब उड़ सकता है। लाइक बर्ड्स, दे हैव रिड्यूस्ड एंड शॉर्टेंड बोन्स सो दैट दे आर लाइट इनफ to take to the air. Next is adaptations for protection. Protection के लिए जो adaptations करते हैं animals must protect themselves from other animals and dangers to stay alive. Different animals have different adaptive features that help them protect themselves. तो एनिमल्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे एनिमल्स से और डेंजर से तो अपने आप में कुछ डिफरेंट एडाप्टेटिव फीचर्स मेड करती है, तैयार करती है। तो क्या है देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज क्या करती है? कैमोफ्लेज इज़ द एबिलिटी टू ब्लेंड इनटू द सराउंडिंग environment. It is a useful self defense method for an animal when trying to avoid a predator. Chameleons and leaf frogs can change their appearance to match their surroundings. Okay, so camouflage एक ऐसी एबिलिटी है। तो वो कैसी एबिलिटी है? तो दिस एबिलिटी इज़ दे ब्लेंड इनटू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। कुछ गिरगिट होते हैं जो अपने आप कलर चेंज करते हैं, जैसे कि कैमेलियन। तो वो क्यों करती है? क्योंकि अगर वो पेड़ पे रहती है तो या फिर लीफ की कलर की होती है या फिर पेड़ की डाल की कलर की होती है। ओके, सो इट इज़ अ यूज़फुल सेल्फ डिफेंस मेथड। तो यहाँ पे कौन कौन ही कर सकता है? कैमेलियंस कर सकता है और लीफ फ्रॉग्स कर सकते हैं। चेंज देयर अपीयरेंस टू मैच देयर सराउंडिंग से मैचिंग अपने आप की अपीयरेंस और चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टिक इंसेक्ट्स। स्टिक इंसेक्ट्स रियली लुक लाइक स्टिक्स विच मीन्स दे आर predators walk away not interested to eat sticks for dinner. तो स्टिक इंसेक्ट्स अपने आप को एकदम स्टिक की तरह रखता है, इसीलिए कोई भी प्रेडेटर उसको खाने के लिए नहीं आता, क्योंकि कोई भी अपने डिनर में कोई स्टिक नहीं खाता है। ओके, नेक्स्ट zebras use camouflage to fool their would-be predators. To a lion, a herd of zebras may look more like a mass of black and white stripes than delicious prey. तो ज़ेब्रा यूज़ कैमोफ्लेज, वो भी कैमोफ्लेज यूज़ करते हैं कि कैसे बचने के लिए और फुल मतलब बेवकूफ़ बनाने के लिए अपने प्रीडेटर्स को। जब कोई लायन आता है तो वो अपने झुंड में जाते हैं, मतलब ज़ेब्रास अपने झुंड में जाते हैं। तो ऐसे जब झुंड में जाते हैं, एक मतलब दल में जाते हैं, तो लगता है कि ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स कुछ होते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए वो छोड़ देते हैं। टर्टल शेल्स कैन लुक लाइक रॉक्स व्हेन दे आर टक देयर हेड एंड लेग्स इनसाइड। तो टार्टल के जो शेल होते हैं वो एकदम रॉक्स की तरह दिखते हैं, लुक लाइक ए रॉक्स। तो जब अपने सर और पैर जब उसके अंदर घुसा लेते हैं तो शेल मतलब एक रॉक जैसा लगता है। द आर्कटिक फॉक्स कैन चेंज द कलर ऑफ इट्स फर टू मैच द कलर ऑफ इट्स सराउंडिंग। इन स्प्रिंग एंड समर द आर्कटिक फॉक्स हैज़ ग्रे फर. Before the start of autumn and winter, its fur color changes to white. By changing the color of its fur, the Arctic fox can avoid
बीइंग डिटेक्टेड बाय इट एनिमीज। तो आर्कटिक फॉक्स क्या करता है, अपने कलर को चेंज करते हैं सराउंडिंग के कलर के साथ, अपने फार के कलर को मैच कर देता है। ओके, इन स्प्रिंग एंड समर कैसा कलर होता है, फॉक्स का कलर ग्रे होता है, ग्रे फार होता है। जब ऑटम आ जाता है एंड विंटर आ जाता है तो उसका मतलब फार का कलर चेंज होकर वाइट हो जाता है। ओके, तो ऐसे करते हैं। कैमोफ्लेज मीन्स द चेंजिंग their color or changing something and blend into the surrounding environment. Next is hibernation and migration. In habitats that get very cold, animals adapt by hibernating or sleeping for up to a few months at a time. सो हाइबरनेशन, सो व्हाट इज़ हाइबरनेशन? जब बहुत ही ठंड पड़ जाता है तो कुछ एनिमल्स सो जाते हैं फॉर फ्यू मंथ्स। ओके, ड्यूरिंग हाइबरनेशन द एनिमल सर्वाइव्स ऑन द स्टोर्ड फैट इन इट्स बॉडी। चिपमंक्स, hedgehogs, bats and bears are some animals that hibernate. तो चिपमंक्स, hedgehogs, bats and bears, तो ये कुछ एनिमल्स है जो हाइबरनेट करती है, मतलब सो जाती है जब विंटर आता है तो। और जब हाइबरनेशन चलता है तो अपने बॉडी में जो स्टोर्ड फैट होता है उससे ही काम चला लेते हैं वो। नेक्स्ट इज माइग्रेशन। What is migration? Migration is when animals leave their habitat for another one that has better climatic conditions. For instance, during freezing winter, some birds would fly to a warm spot, returning back to the original habitat once the weather becomes warmer. Arctic tern is a migratory bird. Okay. So here the example of the migratory bird, Arctic tern. Okay. So what is a migration? Migration is when animals leave their habitat for another one that has better climatic conditions. For instance, during freezing winter, some birds would फ्लाई टू अ वार्म स्पॉट। इसका मतलब है जब ठंड पड़ जाता है बहुत ही, तब फ्रीज से बचने के लिए, विंटर से बचने के लिए कुछ वार्म स्पॉट में वो चले जाते हैं। जब वहाँ का वेदर चेंज होता है तब वो अपने आप के हैबिटेट में वो फिर से चली आती है, तो इसको कहते हैं माइग्रेशन। नेक्स्ट, इन अ शेल, द बॉडीज ऑफ गार्डन snails, clams, crabs and tortoise are covered by a hard shell. The shells help them to stay protected from enemy attacks. Garden snails and tortoises can also pull their heads, legs or their whole bodies inside their shell. Clams protect themselves by closing up their shells. तो ये जो एनिमल्स है, क्रैब्स, क्लैम्स, स्नेल्स, टॉर्टोइज, तो इनके पास क्या होते हैं, शेल होते हैं अपने आप को बचाने के लिए। और जब भी कुछ होता है तो शेल के अंदर अपने पूरे बॉडी को वो अंदर कर लेते हैं, उस शेल के अंदर कर लेते हैं। नेक्स्ट इज स्पाइन्स। Porcupines have spines. Okay. On the surface of their bodies, the spines can injure enemies that go near or attack it. Porcupines raise their long, stiff spines as a warning when their enemies try to approach them. तो porcupines के पास spines होते हैं, तो जब भी कोई एनिमीज़ उसको इंज्योर करने आता है और कोई भी उसको अटैक करने आता है तो नहीं कर पाता, बिकॉज दे आर लॉन्ग स्पाइंस। तो स्पाइंस जब उनको लग जाते हैं और
उन्हें छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इज पॉइजन। Centipedes, cobras, wasps and scorpions can defend themselves from their enemies by using their poison. So centipedes, cobras, wasps, scorpions, तो वो अपने आप को डिफेंड करते हैं from their enemies by using their poison. उनके पास poison होते हैं। puff up, puff up मतलब अपने आप को बलून की तरह या ऐसे फुला लेना। So a number of animals try to appear larger in order to ward off predators. The blowfish or pufferfish has the ability to puff up to about twice its normal size in response to a predator's advance. When threatened, the blowfish plumps air or water into its extremely elastic with their spines and scales protruding. तो ब्लोफिश क्या होता है, अपने आप को फुला लेता है अपने प्रेडेटर से बचने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज प्लेइंग डेड। Many meat eating animals will not eat an animal if they find it dead. The opossum uses this fact to save its own life. When threatened, the opossum falls over and curls up. Its tongue hangs out and its eyes look lifeless. This act can fool a hunting animal into losing interest. तो बहुत सारे मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं जो डेड एनिमल्स को नहीं खाते। तो ओपोसम एक एनिमल्स है जो अपने आप को ऐसे ही कर लेता है कि जैसे डेड एनिमल्स होते हैं, तो डेड की तरह वो पड़ा रहता है अगर वो अपने प्रेडेटर्स को देखता है तो इससे वो बच जाता है। स्मेली अटैक। अ स्कंक डिफेंड्स itself by spraying a smelly mist at its attackers. The spray shoots out from under the skunk's tail. As self-defense, the bombardier beetle squirts a smelly spray that is boiling hot too. तो स्टंक अपने आप को डिफेंड करता है स्प्रेइंग अ स्मेली मिस्ट। बहुत अपने अटैकर्स, अगर कोई अटैकर्स आता है तो एक स्मेली मिस्ट देता है जो बहुत ही गंदा होता है, तो इसीलिए बहुत सारे स्कंक को छोड़ देते हैं। एंड जो संक्स के टेल से नीचे से आता है। एंड बॉम्बार्डियर ब्रिटल स्क्वर्ट्स भी ऐसा ही करते हैं, स्मेली स्प्रे होता है एंड दैट इज़ बॉइलिंग हॉट, और वो बहुत ही गर्म भी होता है। नेक्स्ट इज समरी, मतलब जो आपने पढ़ा है यहाँ पे वो आपको पढ़ना है। ओके, तो ये अच्छी तरह से आपको लर्न करना है, हैबिटेट और कुछ भी। सो आई टोल्ड यू दैट एवरी चैप्टर यू लर्न वेरी वेल। ओके, अगर MCQ क्वेश्चन होता है तो चैप्टर के अंदर से ही आएगा। सो लर्न द चैप्टर्स वेरी वेल। नेक्स्ट इज ग्लॉसरी। व्हाट इज़ एरियल एनिमल्स, एम्फीबियन। ओके, छोटा छोटा करके यहाँ पे दिया हुआ है, तो लर्न ऑल्सो दिस। दिस ऑल्सो लर्न यू। ओके, I hope you understands what I discussed today. So आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। सो चैप्टर ख़त्म हो चुका है, तो लर्न दिस चैप्टर वेरी वेल। ओके, सो आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर एंड गुड बाय एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।